پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ناظرین کرام، خداوند یسوع المسیح کے مبارک ترین اسم اعظم میں آپ سب کی خدمت میں یہ خاکسار آداب بجا لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنانا بہت آسان ہے، اور معذرت کے ساتھ کہ ہم جو مشرقی معاشرے کے لوگ ہیں، ہم میں تو یہ کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے۔ ناظرین، ایک ویڈیو ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، یہ 4 مئی 2021 کو، اور یوٹیوب چینل کا نام جو نظر آیا دا مسلم HD-TV ہے، اور ماں بعد وہ ویڈیو مجھے کئی ایک اور چینلز پر نظر آئی۔ جب میں نے صرف بلیسفیمی ڈال کے یوٹیوب چینلز پر سرچ کیا تو کئی جگہوں پر کئی انفرادی طور پر لوگوں نے بھی اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے اور اس کو ٹائٹل دیا گیا کہ بائبل میں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، جو عام طور پر ہم نعرہ پاکستان میں دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نعرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور نیچے یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یورپی یونین کو منہ توڑ جواب۔ یہ ویڈیو کلپ 3 منٹ 56 سیکنڈ کا ہے۔ مہربانی سے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں اس کلپ پر کچھ دیر کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا۔ Or not. This is not a law made by Quran. Originally, this law of blasphemy, the death punishment for blasphemy of Lord and prophets, this was first of all revealed in Bible. Let me give you the real history of this law. The first of all, this is the law given by Bible, Holy Bible, the Old Testament. I quote you Leviticus. I'm quoting the Bible, Old Testament, book 24, chapter, verse 13 to 16. Holy Bible says, "And the Lord spake unto Moses, saying, He that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death." These are the words of Holy Bible. "And all the congregation shall certainly stone him." And there are many other references. Then time came of Jesus Christ. Gospel appears in New Testament. He did not repeal specifically this law of blasphemy, that the blasphemous should put to death. This would be the death, would be the punishment. Holy Jesus Christ also specifically did not repeal, did not abrogate this law. But he didn't speak on this subject separately. Whatever he said, the Holy Christ, Jesus Christ, he said, whoever, now I'm quoting again Bible, but New Testament, Gospel. Holy Jesus Christ said, "Whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." It is in Matthew 12:31-32. Then it comes in Mark again, "But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness." The Holy Jesus Christ,
who is the fountain of forgiveness for the world, who is the fountain of love and fountain of mercy for the world. He excluded this thing. It is in Mark 3 verse 29. Then in Luke 12 verse 10, again Holy Christ says, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So this law of blasphemy was maintained in New Testament, in the Gospel too. Same laws of blasphemy continued till the Quran was revealed. The Holy Prophet Muhammad also did not repeal it, as the Holy Jesus Christ didn't repeal it. So he also maintained it. So the originally law of blasphemy, the death punishment law, originally was revealed on Moses in Old Testament, the Holy Bible. This was implemented, and it is still up till today in the Holy Bible. And it was neither repealed by Holy Jesus Christ, not repealed by Prophet Muhammad. नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी है और मेरे कई एक रफाका ने, कई एक दोस्त हैं जिन्होंने ये वीडियो क्लिप मुझे भेजा। साफ जाहिर है कि ये असल में एक और वीडियो है, जिस वीडियो को एडिट करके इसको ऊपर और नीचे जैसा आपने देखा है टाइटल्स दिए गए हैं। जब मैंने असल वीडियो को तलाश करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मिनहाज टीवी ऑफिशियल से यह सितंबर 2012 में वीडियो अपलोड हुई और जो ओरिजिनल वीडियो है वो 17 मिनट 29 सेकंड की है और यह क्लिप मैंने कहा 3 मिनट 56 सेकंड का है। तो मुराद यह हुई कि उस 17 मिनट 29 सेकंड वाली वीडियो से यह 3 मिनट का क्लिप निकाला गया और नीचे टाइटल दिया गया है कि यह यूरोपियन यूनियन की रेस्पॉन्स में ताहिर अल कादरी साहब का मुंह तोड़ जवाब। और बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने जो एक राय पेश की है, उस राय को मई 2021 में पेश किया गया और यह वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो है वो सितंबर 2012 की है। यह उस वक्त की बात है जब जनाब डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर अल कादरी साहब डेनमार्क और नॉर्वे के दौरे पर थे और उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यह जो ब्लास्फेमी लॉ है इससे मुताल्लिक आपसे सवाल किया गया और आपने उसका जवाब दिया है। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि पुरानी वीडियो को जो 2012 की है, रिकॉर्ड कब हुई शायद उससे भी पहले, लेकिन मैंने कहा कि सितंबर 2012 में वो यूट्यूब मिनहाज टीवी ऑफिशियल से अपलोड हुई है, जो लगता है कि आप ही का ये एक चैनल है और उसको फिर किसी ने डाउनलोड किया और साफ जाहिर है कि वो हमारा कोई मुसलमान भाई ही था और डाउनलोड करके उस वीडियो पर टाइटल्स लगाए और उसको यूं पेश किया जैसे ताहिर अल कादरी साहब अब यूरोपीय यूनियन की रेस्पॉन्स पर जवाब दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेनमार्क और नॉर्वे के ट्रिप पर थे तो आपने डेनमार्क में ये बयानात दिए हैं जिनका हमें यहां पर जिक्र मिलता है। यूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ताहिर अल कादरी साहब का बयान वीडियो में रिकॉर्डेड है, ना इंसाफी की गई है और यह किसी मसीही शख्स का काम नहीं है।
वरना किसी मसीही चैनल पर आप इसको नजर आते हुए देखते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इश्ताल पैदा करने वाले हैं, लोगों के जज्बात को उभारने और मजरू करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले हैं, और ऐसे लोगों से हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। यहां पर मैं यह भी कहता चलूं कि मैं शख्सी तौर पर शेखुल इस्लाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बहुत मुतासिर हूं। वो एक माहिर कानून दान भी है, एक आलम है और डॉक्टर है, हर दिल अजीज शख्सियत है और हर मजहब के लोगों के लिए आपके दिल में एक अहम मकाम है। आप फतूर पैदा करने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि फितने मिटाने वाली है। मैंने आपकी बहुत सारी तकारीर सुनी और आपकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, और मैं इस मामले में आपको सलूट पेश करता हूं। और काश के हम भाई मिलकर मुस्तकबल के लिए भी बैठें और बेहतर तरीका से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इवन बैनल मजाहिब की हम आहंगी पर मिलकर काम करने वाले हो सके। यह एक अहम तरीन बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि डॉक्टर साहब की इस वीडियो के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मुझे उसका सदा अफसोस है और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की इश्ताल अंगेज बातों का फैलाना गोया और ज्यादा हमें एक दूसरे के लिए नफरतें और कदूरतों की जगह देता है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को जो बाद इज एडिट हमारे सामने आई, जब अहले कलीसा ने देखा, यकीनन उनके जज्बात बहुत मजरू हुए हैं। एक तो यह बात है कि यह वीडियो अब की नहीं है, 2012 की है, लेकिन दिखाया यूं गया जैसे मई 2021 की है। लेकिन एक बात जो इस वीडियो के दौरान मैंने नोट की है, मैंने बार बार सुनी है, उसमें एक नुक्ता जो पेश किया गया, जनाब डॉक्टर साहब माजरत के साथ में अर्ज करूंगा एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, और वो ये है कि आपने बाइबल मुकद्दस के कुछ हवालाजात दिए हैं, और उन हवालाजात को पेश करते हुए शायद गलती हो सकती है हमसे, मैं भी गलती से, आपने यह बयान किया कि प्रॉफिट्स एंड लॉर्ड यानी अंबिया और खुदावन के बरखिलाफ जो ब्लेसफेमी है, गुस्ताखी है, उसकी सजा बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद है। क्लिप मैंने ऑलरेडी वीडियो के साथ लगा दिया है, और उस पर मैंने ऑलरेडी इसीलिए लगाया है कि आप खुद पहले वो जो 3 मिनट वाली वीडियो है उसकी बात करता हूं। उसके शुरू वाले 1-1.5 मिनट अगर आप देखें तो वहां पर आपने फरमाया है कि नबियों और खुदा के बारे में जो कोई गुस्ताखी करता है, ब्लेसफेमी करता है, उसकी सजा सबसे पहले तौरात की किताब में अहले यहूद में मौजूद है। तो आपने अहद अतीक यानी ओल्ड टेस्टामेंट से जो हवाला आपने पेश किया है, मुझे भी इजाजत दीजिए, आपने अंग्रेजी में तलावत किया था, मैं उर्दू में तलावत कर लेता हूं ताकि बेहतर तरीका से ये उर्दू की जो बात है लोग बेहतर तरीका से समझ सकें। मैं आप पर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और मैं होता भी कौन हूं क्रिटिसाइज करूं। मैं चाहता हूं कि जो कंफ्यूजन अहले कलीसा में इस एडिटेड वीडियो के जरिए पैदा हुई है, उसका किसी तरह से अजाला किया जा सके। आप और हम मिलकर काम करने वाले हूं। आप इस कानून के बरखिलाफ तो नहीं है, लेकिन जो इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है
اس کے آپ برخلاف ہیں. ایون جنرل ضیاء صاحب نے آپ کو اس قانون کے مرتب کرنے میں دعوت بھی دی تھی، لیکن بعد میں آپ نے چونکہ کہا کہ میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اس لیے وہ بات بن نہیں پائی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ زبردستی انہوں نے گویا اس قانون کو 80s کی دہائی میں مرتب کیا تھا. جب آپ نے لیویٹکس یعنی احبار 24 باب کا حوالہ دیا، اجازت دیجئے میں اس کو تلاوت کرتا ہوں 24 باب کی 13 آیت سے 16 آیت تک. 24 کی 13 اور 16 لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لعنت کرنے والے کو لشکر گاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے. اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اس کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی. جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. صاحب کسی بھی آیت یا ایک متن کی تفسیر کے لیے اگرچہ بات کلیئر ہے ان آیات میں، لیکن علم التفسیر کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی متن کی سٹڈی اور اس سے کوئی معنی اخذ کرنے کے لیے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے. بات کو واضح کرنے کے لیے اور پس منظر کو جاننے کے لیے میں 11ویں آیت سے تلاوت کرتا ہوں. لکھا ہے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی، تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے. اس کی ماں کا نام سلومیت تھا جو دبری کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلہ کا تھا، اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے. ان آیات میں جو آپ نے بھی پیش کی ہے اور تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھا، وہاں پر کسی نبی یا کسی رسول کے نام کی تکفیر کرنے اور ان پر گستاخی کے الفاظ نظر نہیں آتے. بزرگ موسیٰ سے پروردگار عالم کلام کرتے ہیں اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو پاک نام پر، ذات الہی پر کفر بکے، خدا کے ذات پر کفر بکے، اس پاک ذات کے نام پر لعنت ملامت کرے، اس کو سزا دینے کا حکم ہے. یاد کیجئے، یہ کسی نبی یا کسی پیغمبر کے خلاف گستاخی کرنے کی بات نہیں ہے، اور یہ حوالہ اس پر فٹ بھی نہیں آتا. اور میں اس بات کی تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ہاں خدا کے برخلاف تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن نبیوں اور پیغمبروں کے برخلاف جو چاہیں کہیں. نو، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء اور رسل قابل احترام ہیں، اور ہمیں ان کی ہر پہلو کے اعتبار سے عزت اور احترام کرنا چاہیے. سرزمین پاکستان میں یا یہاں جہاں کہیں میں ہوں، میں اور ہم جتنے بھی مسیحی مذہبی رہنما ہیں، ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ اہل اسلام کی مقدس کتاب کی عزت کریں اور احترام کریں. ہم ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کریں بلکہ عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور انتہائی ریسپیکٹ فل مینر سے ان کے نام بھی اگر کہیں لینا مقصود ہوں
तो आप नाम लें, लेकिन कोई गलत बात आप उनके हक में कभी ना करें, हमारा कोई हक नहीं बनता। यह हवाला जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूल या यूं कहना चाहिए कि इस एडिटेड वीडियो पर लगा हुआ है, उस पर यह फिट नहीं आता कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा। नो, इस हवाले में यह नहीं है, ना ही डॉक्टर साहब ने इस हवाले से इस बात को पेश करने की कोशिश की। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि नबियों और खुदा के बारे में गुस्ताखी मना है और यह हवाला जात दिए हैं, लेकिन यह हवाला खुदा की जात के बरखिलाफ कुफर बोलने से मुताल्लिक है, किसी नबी और किसी रसूल और किसी पैगंबर की बाबत नहीं है। फिर आप फौरन अहद जदीद में चले गए और आपने मुकद्दस मती की मार्फत इंजील मुकद्दस का हवाला दिया है और उसका 12 बाब और उसकी 31 और 32 दो आयात मैं उनको तलावत किए देता हूं। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा। क्या? हर गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो मुआफ ना किया जाएगा। थोड़ा सा आगे, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। मसीही तालीम के मुताबिक मसीहा ने यहां पर यह फरमाया है कि इब्ने आदम बशरी जामे में जब वो थे तो उन्होंने अपनी जात से मुताल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इब्ने आदम। और आपने फरमाया कि इब्ने आदम के खिलाफ भी अगर कोई कुफर कहे, कोई बात करे, तो वो उसको मुआफ हो जाएगी, लेकिन जो कोई रूह कुद्स यानी पाक रूह के बरखिलाफ बात करे उसकी मुआफी उसे नहीं है, ना इस दुनिया में ना अगले जहान में। तो ये पाक रूह कौन है? ये रूह अल्लाह कौन है? ये खुदा बजाते खुद है, खुदा का रूह है। ये उसकी बात हो रही है, ये किसी नबी या किसी रसूल की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई अहले यहूद के अंबिया और ना ही कोई अहले मसीहियत के रसूल, ना ही जीसस क्राइस्ट, ना ही कोई और, बल्कि रूह कुद्स पाक रूह खुदा है। और यह खुदा से मुताल्लिक बात की जा रही है कि जो कोई खुदा के बरखिलाफ बात करेगा उसका यह गुनाह मुआफ नहीं किया जाएगा, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में, अगले जहान में। पाक रूह के बरखिलाफ गुनाह क्या है, मैं उससे मुताल्लिक आपकी खिदमत में बताऊंगा कि वो क्या है। आपने मार्कस की मार्फत इंजील मुकद्दस 3 बाब और उसकी 29 आयत का भी जिक्र किया, उसमें भी यही बात पाई जाती है। लेकिन मैं लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका एक हवाला आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। 12 बाब, यह भी हवाला आपने पेश किया है, इसलिए मैं इस हवाले को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 12 बाब और उसकी 10 आयत। इस आयत में यूं लिखा हुआ है, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन रूह कुद्स के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। सेम वही बात है जिसका जिक्र हम पहले कह चुके हैं। डॉक्टर साहब, जो कंफ्यूजन पैदा हुई है वो सिर्फ ये कि इन आयात के मुताबिक अगर आप थोड़ी रोशनी डाल देते कि ये रूह कुद्स कौन है, ये कोई नबी नहीं है, कि कोई रसूल नहीं है, बल्कि यह ज़ाते इलाही है, तो फिर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन पैदा ना होती। लेकिन ये पुरानी बात है,
उम्मीद है कि उसके बाद आपने और बेहतर करने की कोशिश की होगी और बेहतर तरीका से किया होगा। आपने इसको यूं बयान किया कि तौरात में भी और ब्लास्फेमी की बात है, यीशु मसीह ने भी ब्लास्फेमी की बात की है और इसी तरह इस्लाम में है। वेल, इस्लाम में जो कुछ है मैं उसकी बाबत कुछ नहीं कहना चाहता, उसको आप बेहतर समझते हैं, मैं इतना नहीं समझता, थोड़ा सा समझता हूं, इसलिए मैं इतनी बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि तौरात के मुताबिक भी और इंजील मुकद्दस के मुताबिक भी हुजूरुल मसीह ने भी जो बात की है वो भी यही की है कि ज़ाते इलाही खुदा के बरखिलाफ और खुदा के कामों के बरखिलाफ अगर कोई बात करे तो उसको इस जहान में भी सजा है और अगले जहान में भी है। इस जहान में सजा से यह मुराद नहीं है कि हम बजाते खुद तलवार लेकर उसकी गर्दन को उड़ा दें। नो, इट इज नॉट हियर। यह बात यहां पर नहीं लिखी हुई और इसकी और भी वजूहात हैं। यह इस जहान में, इसका मतलब यह कि जिसके खिलाफ वो बोला है वो इस जहान में भी उसको सजा देगा। और यह तो शरीयत की बात थी कि उसको संसार करो, लेकिन मसीही तालीम के मुताबिक यह है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, ज़ाते बारी ताला फरमाते हैं। और मसीही तालीम के मुताबिक यह है कि ऐसे शख्स को इस दुनिया में भी ऊपर से खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, सजा मिलेगी, और उखरवी जिंदगी में तो मिलेगी ही मिलेगी। यह गुनाह यहोवा जो खुदा का शख्सी नाम है, इब्रानी लोग जिस नाम से उसको पुकारते थे, इंतहाई पाक तरीन नाम, उस नाम के बरखिलाफ कुफ्र बोलने की वजह से यह सजा अहले यहूद में कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर थी, जो कुजात इस सजा को दिया करते थे। अब गुस्ताखे रसूल की जब बात हो रही है तो ये हवाला जात उस पर कतई तौर पर फिट नहीं आते, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं कतई तौर पर यह नहीं कहूंगा कि नबियों और रसूलों के बरखिलाफ कुछ कहा जाए तो कोई बात नहीं, नो एंड नेवर, मैं कभी भी यह नहीं कहूंगा, क्योंकि यह कोई दीनदारी नहीं है, यह कोई ईमानदारी नहीं है। खुदा के लोग अपनी जबान पर कोई ऐसे अल्फाज नहीं लाते जो अंबिया और रसूल खुदा की तरफ से भेजे हुए मुकद्दसीन हूं और उनके बरखिलाफ कोई ऐसी बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह दुरुस्त नहीं है। अब रूह कुद्स के खिलाफ जब गुनाह की बात होती है तो वो क्या है, मैं आपकी खिदमत में हवाला पेश करता हूं बुजुर्ग मती की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस और इसका 12 बाब और इसकी 24 आयत। रूह कुद्स के खिलाफ गुनाह क्या है, खुदा के खिलाफ गुनाह क्या है, मैं बताता हूं। 24 मती 12 बाब और उसकी 24 आयत। किताबे मुकद्दस में यूं लिखा है, फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। तो यह बात किसके बारे में हो रही है? मसीह इब्ने मरियम के बारे में। जब वो बुरी रूहों को, जिन्नात को निकालते थे, शरीर को, बदी की रूहों को निकालते थे, तो वो जो फरीसी थे वो आप से मुताल्लिक ये कमेंट्स पास करते थे कि ये शैतान की मदद बालजबूल से और उसकी ताकत से और उसकी मदद से बदरूहों को निकालता है। ऑफ कोर्स आप भी इस बात को तस्लीम नहीं करते, ना ही हम इस बात को तस्लीम करते हैं। ये आयत सिर्फ मिसाल के तौर पर मैंने दी है कि रूह कुद्स के खिलाफ गुनाह यह है कि खुदा का और खुदा की जात का
और खुदा की कुदरत से किए गए कामों का इनकार। यह है रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह और इस गुनाह की मुआफी नहीं है। खुदा बजाते खुद ऐसे शख्स को हैंडल करेंगे और वो अपने वक्त पर, मुझे और किसी और शख्स को कोई इख्तियार नहीं कि किसी ऐसे शख्स को वो हैंडल कर सकें, ये दुरुस्त नहीं है। और अगर आप मसीही तालीमात को देखें तो मसीह इब्न मरियम ने फरमाया, अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मसीही तालीम के मुताबिक मसीह खुदावन ने वाज़े तौर पर फरमाया कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। आप अपनों में आए, यानी अहले यहूद में, और अहले यहूद ने आपको कबूल नहीं किया। और इवन मैं यूं भी कहूंगा कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए वो परवरदिगार आलम की तरफ से नस्ल इंसानी के लिए खुदाम के तौर पर थे। नबियों के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन परवरदिगार ने, अगरचे उसको यह पसंद नहीं आया कि उनके साथ बुरा हो, लेकिन जितने भी रास्त और खुदा की तरफ से अंबिया थे उनको हर जमाने में सताया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा रद्द अमल करने के लिए हमें हुक्म नहीं हुआ। इवन आज के दौर में भी जितने भी दीनदारी की जिंदगी बसर करते हैं वो जरूर सताए जाते हैं। आप सताए गए और हुजूरुल मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने हवारियों से, अपने सहाबियों से यह नहीं कहा कि तुम मेरी तरफ से बदला लो, ऐसा नहीं है। और ना ही आपके हवारियों ने आपका बदला लिया। एक ने तलवार निकाली और एक नौकर का कान काट डाला, लेकिन मसीहा ने फरमाया, नो, अपनी तलवार अपनी नियाम में रखो, तुम इसको नहीं ले सकते। तो मसीही तालीम के मुताबिक किसी भी नबी और किसी भी पैगंबर के खिलाफ अगर कोई बोलता है यह गलत है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसकी अदालत करना मेरा और हमारा काम नहीं। जाते इलाही बजाते खुद उसके साथ दो हाथ करेंगे और उस वक्त के लिए हमें इंतजार की जरूरत है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मैंने खुद अपनी आंखों से पिक्चर्स की सूरत में कई ऐसे जूते देखे जिन पर मसीह की और मादरे मसीह की इमेजेस दिखाई गई। खवातीन के पांव पर जो पाजेब होती है, उस पाजेब के साथ सलीब यानी क्रॉस का निशान लगाया गया। बाइबल्स को जलाया गया, चर्चिस को जलाया गया, चर्चिस के अंदर लोगों को मारा गया। हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, लेकिन हमने किसी को जान से नहीं मारा। कोशिश यही की गई कि जो कानून है वो बजाते खुद इस मसले को हैंडल करे, लेकिन हम जानते हैं कि कानून ने कितने एक ऐसे मसाइल को सुलझाया, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। आपने फरमाया कि कोई एक भी ऐसा केस नहीं कि अगर इस ब्लास्फेमी लॉ में किसी को गिरफ्तार किया गया हो तो उसको रिहा ना किया गया हो। साहब, मैं माजरत के साथ यह अर्ज करूंगा कि अदालतें रिहा कर देती हैं, लेकिन पब्लिक और अवाम इतनी मुश्ताइल होती है कि वो हुकूमतों के इन फैसलों को कबूल नहीं करती और वो खुद कानून को हाथ में लेने की कोशिश करती रही और करती है भी, और उस बंदे का काम तमाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही है। लेकिन मसीहियत में ऐसा नहीं है। मसीही तालीम के मुताबिक परवरदिगार आलम फरमाते हैं
कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, रोमियो के नाम लिखा गया खत और इसका 12 बाब और उसकी 19 आयत, रोमियो 12 की 19। यहां पर लिखा हुआ है, ए अजीजो अपना इंतकाम ना लो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि यह लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और अगरचे हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफियां होती रहीं और आज भी होती हैं, लेकिन जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो अहले कलीसा वहां सरे फहरिस्त होते हैं मदद करने के लिए। और आप मुत्तफिक हैं इस बात से, क्योंकि आप काफी ओपन माइंड और इंसानियत के अलमबरदार और खैर खा हैं। मैंने आपको कई बार सुना और आपकी बातों से काफी मेरे हौसले भी बुलंद हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस वीडियो के सबब से, आपकी वजह से नहीं, एडिट करने वाले शख्स की वजह से, जिसने फिर से अब जाकर इसको एडिट करके सामने पेश किया। अहले कलीसा के जज्बात मजरू हुए, तब मैंने चाहा कि थोड़ी सी अपनी कलीसिया के लोगों की हेल्प की जाए। मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ यही कि दर हकीकत ये जो हवाला जात आपने पेश किए हैं, इनके पीछे किसी नबी या पैगंबर के खिलाफ बोलने की बात नहीं है, यह ज़ाते इलाही के बरखिलाफ बोलने की बात हो रही है। आखिरी बात मैं ये कहता चलूं और वो ये है, अगर ज़ाते मसीह के बारे में कोई कुफ्र बोलता है, कोई ब्लास्फेमी होती है, और हम अगर अपने जोरे बाजू से मसीह का दफा करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मसीह में खुद कोई ताकत नहीं है कि वो अपना दफा कर सके। ज़ाते बारी ताला की बाबत अगर कोई शख्स कोई बुरी बात कहता है, खुदा न खास्ता नाउजुबिल्ला, तो अगर हम उस शख्स की गर्दन उड़ा देते हैं, तो क्या हम यह समझें कि हम खुदा की मदद करते हैं क्योंकि उसमें खुद ऐसी ताकत नहीं? मैं समझता हूं तरीका तो यह होना चाहिए कि जो कोई जिसके बरखिलाफ कहता है, अव्वल तो कहना ही नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी मुआफी नहीं है, किसी नबी के बारे में, किसी पैगंबर के बारे में, रसूल के बारे में, ज़ाते इलाही के बारे में। लेकिन अगर कोई ऐसा गुस्ताख निकल आए तो बेहतर नहीं कि हम उसको खुदा ही के सुपुर्द करें, ताकि वो खुद इस शख्स का इलाज करे, क्योंकि उसने कहा बदला लेना मेरा काम है। तो उसका काम हम क्यों अपने हाथ में लेते हैं? यूं हम अपने माबूद को डिग्रेड करते हैं। उसका जो मकाम है उसको हम वो मकाम दें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें इस वीडियो क्लिप में भी की हैं, और आपने कहा कि मसीहा मुआफी का मंबे है, मुआफी का सर चश्मा है। और मैं आपको सलूट पेश करता हूं कि आपने ये खूबसूरत पैगाम अहले जहान तक पहुंचाया है, और मैं आपको दाद देता हूं, नेक्स्ट टाइम जब कभी यूरोप की तरफ आना हो, खाकसार स्वीडन में है और दरे दिल खुला है, जरूर अच्छा लगेगा मिल बैठना और नस्ल इंसानी की बेहतरी के लिए काम करना बहुत भला लगेगा। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम आपको उम्र दराज अनायत फरमाए, ताकि नस्ल इंसानी के लिए और बेहतर काम करने वाले हों, और ऐसे लोगों को जो इश्ताल देने वाले और तखरीब कारी करते हैं उनको अकल, दानिश और हिकमत दे। और खुदावन मुमकिन फरमाए
کہ अहले कलीसा के जज्बात मजरू ना हों, उनकी इज्जतों की मुल्क पाकिस्तान में हिफाजत की जाए, उनकी बेटियों की हिफाजत की जाए, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाए, और बगैर किसी वजह के मासूम जानू को आग की भट्टियों में ना झोंका जाए, मासूम जानू को सरे बाजार घसीटा ना जाए, उनको कत्ल ना किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को और इबादत गाहों को जलाया ना जाए। यह इंसानियत नहीं है। यूं हम और ज्यादा दुनिया को दिखाते हैं कि हम असल में हैं कौन। हम पाकिस्तान की एक खूबसूरत इमेज दुनिया के सामने पेश करने वाले हो सके, यही एक अहम तरीन बात हमें नजर आती है। और आप जानते हैं मेरे नाजरीन, और वो ये कि दुनिया में बहुत सारे लोग मज़ाहिब से मुतनफ़िर हैं। वो कहते हैं हम लादीन ही सही। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं कि जहां जहां मजहब परस्त लोग हैं वहां लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, सुसाइड बॉम्बिंग से ब्लडशेड है, जिस सबब से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में अप्रैल के महीने में, मई के आगाज में पाकिस्तान में कितने ज्यादा झगड़े हुए। उधर कोविड हमें अपनी लपेट में लिए हुए है, और उधर हमने शायद ही कोई अच्छी गाड़ी रोड पर छोड़ी हो जिसका हमने अठ्यानाश नहीं किया। क्या यही है हमारी तालीम? आए हम मुआफी की रूह अपने अंदर रखें और दूसरे लोगों को बताएं कि हम मजहबी हैं तो क्यों हैं। काश के परवरदिगार हमें मजहबी होने के साथ रूहानी होने का भी फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great time. Amen.